Hello children, today I am going to start the new chapter number 6. The name of the chapter is Lines and Angles. Okay. See the contents of this chapter. In the introduction part, the contents are lines, rays, line segment, angles and their types, adjacent angles, linear pair and the vertically opposite angles. Okay. This is the introductory part of chapter number 6 for the exercise number 6.1. See. Number one is line. Okay, a straight piece which can extend or expand in both the direction is called the line. Left, here is AB और इसके दोनों तरफ एरो का साइन होता है, it is called the line. It can extend in both the direction. You can represent any line as AB and put this sign. ऊपर इस तरह का साइन लगा के आप किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Definition is written in your NCERT. You can write down all the definition of these contents from your NCERT book. Now, second is rays. A beam of light which starts from an origin or a point and it expand in only one direction. Ray can travel in only one direction. तो किसी भी ओरिजिन से जब एक दिशा में कोई भी रे डायरेक्शन में कोई भी बीम ऑफ लाइट चलती है तो उसका क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं. सपोज O is the origin and A is that point, so we can represent ray as OA and make a sign like single arrow in one direction. And third is line segment. What is line segment? A line segment is the definite part of the line which can be measured. एक किसी भी लाइन का एक निश्चित पार्ट जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो क्या कहलाता है? लाइन सेगमेंट. लाइन को आप मेजर नहीं कर सकते हैं. लाइन क्योंकि दोनों तरफ एक्सटेंड होती है, बढ़ सकती है, कितनी बढ़ा सकते हैं उसको हम, वो मेजरेबल नहीं होती है. लेकिन लाइन सेगमेंट इज द पार्ट. तो किसी भी लाइन का पार्ट हमेशा मेजरेबल होता है तो हम उसको मेजर कर सकते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ टू डॉट्स or 2 points in both the ends like AB. Okay, it is the part of the line. It can be of 4 centimeter, 5 centimeter, 6 centimeter. तो इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसको हम नाप सकते हैं. It can be represented as AB bar. इस तरह से पॉइंट लगा साइन लगाते हैं, दोनों तरफ पॉइंट लगाते हैं तो ये क्या हो जाता है? इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है. ओके, नाउ सी the second point, angles and their types. Okay, when two rays originated from the same point, one ray and it is the second ray, then the magnitude between these two rays in the degrees is called the angle. So it is called the angle. ओके, तो दो रेज जब एक ही ओरिजिन से निकलती है तो लाइक O इज द ओरिजिन, OA एंड OB. ओके, सो दिस एंगल इज कॉल्ड, दिस इज द साइन ऑफ एंगल AOB. एंगल AOB और यू कैन से इट एज एंगल BOA. तो जो कॉमन वर्टेक्स होगा उसको हमेशा बीच में लिखते हैं और जो आर्म्स होती हैं ओके उनके पॉइंट्स को हम लेफ्ट और राइट साइड लिख सकते हैं ओरिजिन के, या तो AOB या DOA, बोथ आर राइट. ओके, तो इस तरह से हम किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब आता है टाइप्स ऑफ एंगल. देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एंगल्स. नंबर 1, acute angle. Those angles which measures lesser than 90 degree but greater than 0 degree are called acute angles. Let X is the angle, its value is greater than 0 degree but lesser than 90 degree are called acute angles. Number 2, obtuse angle. Obtuse angles are the angles whose value is greater than 90 degree but lesser than 180 degree. So its value is greater than 90 degree but lesser than 180 degree are called the obtuse angles. Third, zero angle.
एन एंगल हुज मेजर इज 0 डिग्री मींस कि जो इनिशियल लाइन होगी और जो इनिशियल आर्म होगी और फाइनल आर्म होगी वो क्या करेंगी, वो ओवरलैप करेंगी यानी कोइंसाइड होगी। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये एक जीरो एंगल बन जाएगा। इट्स वैल्यू इज एग्जैक्टली 0 डिग्री। ओके, नंबर 4 स्ट्रेट एंगल। Straight angle are the angle whose measure is exactly 180 degree. Like acute angle की फिगर बनाते हैं हम इस तरीके से बनती है। obtuse angle की फिगर like this 0 डिग्री, एक आर्म है यहां पर और दूसरी भी यहीं पर है O A, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 0 एंगल। एग्जैक्टली 180 डिग्री मतलब एक आर्म इधर है और दूसरी आर्म बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। तो दिस एंगल इज कॉल्ड द स्ट्रेट एंगल। नंबर 5 इज रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल whose measure is greater than 180 degree but lesser than 360 degree. Okay, like O is the origin, O is the first ray और second ray इस तरह से नीचे आ रही है। तो ये एंगल जो होगा greater than 180 degree हो जाएगा। It will be the reflex angle. And the next angle is complete angle. An angle whose measure is exactly 360 degree is called the complete angle. Okay, like O is the origin और OA ये है। अब सेकंड रे जो है घूमकर वापस इसी के ऊपर आ गई, ठीक है। तो घूमकर आई है वापस, पूरा राउंड लिया है, तो हम इस तरह का साइन जरूर बनाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंप्लीट एंगल। जबकि देखो ये और ये दोनों फिगर सेम है, ये 0 एंगल की फिगर है, ये कंप्लीट एंगल की फिगर है। लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें कि यहां पर हमने इसको राउंड नहीं बनाया है, सर्कल नहीं बनाया। मींस ये जहां पर पहली रे थी वही दूसरी रे है, तो ये 0 एंगल की फिगर हो गई। और यहाँ ये एक राउंड बनाकर वापस ओवरलैप कंडीशन में आती है, तो ये होगी कंप्लीट एंगल की फिगर। ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ एंगल्स: एक्यूट, ऑब्ट्यूज, जीरो, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स एंड कंप्लीट। You can write the definition by yourself or with the help of the NCERT book. Please note down. The next content is adjacent angles. What are these angles? As the name is given, adjacent. So two angles which are joined end to end are called adjacent angles. Like here, A, B. Let AOB is one angle started with the origin O, and BO, let's see, BOC is another angle. Let it is the first angle and it is the second angle. These angles are called the adjacent angles if they have one arm common between them, and the common arm lies between the remaining two arms. Okay. अब हमने देखा कि AOB एक एंगल है और BOC दूसरा एंगल है, दोनों के दोनों का ओरिजिन क्या है, सेम है। ये O इसका कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स है। और इन दोनों ही एंगल्स पे एक आर्म है OA और एक है OB। इसमें एक आर्म है OB और एक है OC। यहाँ ये वाली जो आर्म है OB, ये दोनों में कॉमन आ रही है, और वो कॉमन आर्म कहाँ है, कॉमन आर्म बाकी दोनों आर्म्स के बिटवीन यानी कि बीच में कहीं आ रही है। तो हम कह सकते हैं these angles are called the adjacent angles. Okay. The next is linear pair. Linear pair सबसे आसान समझना कैसे, when two angles are made on the straight line, let O is the origin and AOB is one angle and BOC is the another angle. If these two angles lie on the straight lines, means जो इनकी जो आर्म्स हैं OA और OC वो एक दूसरे के बिल्कुल क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, then it is called the linear pair. And you know the sum of these angles, angle AOB plus angle BOC is always 180
डिग्री। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइंस पे क्या करेंगे, इस तरह से हाफ सर्कल बनाएंगे और 180 डिग्री कंप्लीट हो जाएंगे। In other words, we can see the definition of linear pair as two adjacent angles are called the linear pair when the two non-common arms of the angles are on the opposite direction with the origin. जब origin से दोनों opposite direction के बीच में होती है तो वो adjacent angles को भी linear pair कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों angles adjacent angles भी तो हैं, तो ये हो गया linear pair. And next is vertically opposite angles. Opposite angles, ये क्या होते हैं? In short, we can write it as VOA. Vertically opposite angle को VOA भी लिख देते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन करने में इतना बड़ा नाम लिखना इजी नहीं होता, VOA लिख देते हैं. When two lines intersect each other at one point, let AB is the straight line and CD is the line intersecting at O. Then the angle opposite to this vertex are called the vertically opposite angle pairs. Like BOD, ये एंगल इसके अपोजिट एंगल आ रहा है AOC, तो these angles are equal. ये एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अब जैसे AOD है दिस वन एंड COB है दिस वन, ये एंगल होंगे इक्वल लेट वाई. तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, जबकि लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है. स्टूडेंट्स, अब क्या होगा यदि स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक से दो से ज्यादा एंगल्स आ जाते हैं? लाइक एक स्ट्रेट लाइन है AOB, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, CBE. तो AOE, EOD, DOC, COP, ये चारों एंगल्स आ गए. तो इन चारों एंगल्स का सम भी 180 डिग्री होगा. क्यों? क्योंकि ये चारों भी तो हाफ सर्कल बना रहे हैं, तो इनका सम भी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा. लेकिन इस प्रॉपर्टी को लीनियर पेयर नहीं कहेंगे, क्योंकि लीनियर पेयर में केवल हम दो एंगल्स इंट्रोड्यूस कराते हैं. इस प्रॉपर्टी को कहेंगे एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन. एक सीधी लाइन पर बनने वाले एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है. ये हम यहां पर लीनियर पेयर को एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं, लेकिन दो से ज्यादा एंगल्स का सम जब 180 करते हैं उसको लीनियर पेयर नहीं बोल सकते. ओके, तो दीज आर द बेसिक डेफिनेशंस ऑफ ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स एंड द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स. ओके, सो यू हैव टू राइट ऑल द डेफिनेशंस रिलेटेड टू दीज कॉन्सेप्ट्स विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी बुक इन योर फेयर नोटबुक. स्टूडेंट्स, सीबीएसई बोर्ड ने आपका सिलेबस इशू किया है और अब आपके एग्जाम 2 टर्म्स में होंगे, फर्स्ट टर्म और फाइनल टर्म. फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है उसमें हम आपको सेकंड चैप्टर जो करा चुके हैं, दैट इज द पॉलिनोमियल्स, वो नहीं आ रहा. फिफ्थ चैप्टर जो अब फोर्थ के बाद होना था वो भी नहीं आ रहा. तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर 6th चैप्टर स्टार्ट कराया. ओके, जो सेकंड चैप्टर है वो फाइनल टर्म्स में आएगा, इसलिए वो एडवांस में आपका कंप्लीट करा दिया है, लेकिन वो फर्स्ट टर्म के एग्जाम में नहीं आएगा. Okay students, I will provide you the syllabus of first term and final term through the method of PDF. Okay, PDF भेजूंगा मैं आपको, उसमें आप देख सकते हैं. Thank you very much.